Hello friends, welcome to another session on Adda 24/7. I'm your mentor Ritika, and if you're watching me for the very first time or you are new on this channel, I would request you please subscribe to our channel. You are going to get a lot of content which is going to be useful in your preparation. And if you do not have our mobile application, let me tell you, we have a mobile application which provides you daily quizzes, daily current affairs, PDFs, job alerts, and many more things which are absolutely free. You just have to download our mobile application. ठीक है? चलो अब चलते हैं आगे. And the mudda of the video of the day is the reality of the RBI Grade B officer's life. Now what happens is when we are preparing for a job, and we all know that RBI Grade B is the top banking job that you can get, right? It offers a very good salary. It is going to provide you the best lifestyle, the best work-life balance. So is it actually true? Are you going to get everything you have imagined the way you have imagined? So I'm going to tell you that today. So our areas of discussion would be salary, of course, work environment, accommodation, promotion and posting. I'll take salary, promotion together, work environment, posting together, and then we'll discuss about the accommodation, because lately I've got to know that even accommodation is a major concern amongst the candidates who are preparing for this exam and the ones who are already there. Because it is a hustle if you do not get an accommodation, and what if you do not get. So we'll discuss all these things, okay? So let's talk about salary. So RBI Grade B officers' salary is pretty recent. The gross salary is 1,50,000, and basic component itself is quite high, approximately 78,000. See, I understand that it is a very good salary, but please understand that it is not something, you are going to get in crores, you are going to get an opportunity to become a millionaire, in months. No, it's nothing like that. It is a very good salary. It's a handsome salary for a person who joins a job, okay, because you get scope for promotion and upgrade as well, and of course the pay band is also going to rise. So it is going to take care of all your needs, your necessities, and even it will help you to afford a decent standard of living, okay. You can get subsidized loans, of course, as an employee of the Reserve Bank of India, and you'll get fair enough leave, fair concessions as well. So a decent standard of life you'll be able to maintain, but not a very high paying crores package that you are going to get. You have to be very clear in your mind with this, okay? अच्छी सैलरी है, but कुछ ऐसा नहीं है कि मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा, पता नहीं क्या ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है. Second, we talk about promotions. See, this is people usually think that I have seen students like this, especially the ones who are kind of, very new to the preparation, that I'll join RBI Grade B and, I dream of becoming the governor. I want to reach there. Let me tell you, of course, with due respect, you're going to get all the promotions with your hard work. Because once you join as manager Grade B, you'll be promoted to the next post Grade C. But it is going to come in somewhere 5 to 7 years. Then next post, again 5 to 7 years. So from Grade B to Grade C and then Grade D, which is the Deputy General Manager, you are going to take around 10 to 12 years. 10 is minimum, okay? 12 years it can go up to, and more than that also. And of course, you get an opportunity to be promoted up to Deputy Governor level if you have more than 30 years of the span for your work, because it is going to take time. The more you go up in the ladder, the difficult it becomes to stay there and then go more higher. So it is not that easy, okay? अच्छी खासी आपको promotions मिलती हैं. यूजुअली एक टेन्योर में ज़्यादातर लोग DGM तक पहुंच जाते हैं या जीएम तक भी चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद सीजीएम बनना, प्रिंसिपल सीजीएम, ईडी, डेप्यूटी गवर्नर तो ऑफ कोर्स कोई रेयर ही है. बने हैं, ऐसा नहीं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स, लेकिन बहुत कम, ओके. और गवर्नर तो हमें पता है यूजुअली ब्यूरोक्रेट्स ही आते हैं. तो ये बहुत अच्छी लैडर है. दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, रादर देन बीइंग सो ड्रीमी कि अरे मैंने तो सोचा था मैं जाऊंगा, काम करूंगी एंड आई विल बी प्रमोटेड इस लेवल पे. ऐसा नहीं है. एक सिस्टम है जो काम कर रहा है. आप जैसे और बहुत लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, और
ये एंटायरली डिपेंड करेगा आपको प्रमोशन जो मिलना है, एक तो आपके काम पे, ऑफ कोर्स आपकी कैसी एफिशिएंसी, कितना अच्छा ग्रास्प कर पाते हो, कितने अच्छे सोशली रह पाते हो अपने ऑफिस में, एंड ऑफ कोर्स वैकेंसी पे भी डिपेंड करेगा कि रहेगी कि नहीं। तो अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, आई डू नॉट वांट टू डीमोटिवेट यू। यहाँ भी आप पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है। कितने लोग बैंकिंग इंडस्ट्री में यहाँ तक भी पहुंच पाए हैं, आरबीआई तक भी पहुंच पाए हैं, सोचो। तो डिमोटिवेटेड नहीं होना, लेकिन यू हैव टू हैव दिस रियलिटी चेक, ओके। Then I talk about the work environment. Now people have this notion again that when I join RBI, you know, I am going to be in the top notch institution of our country, और वहाँ पे सबके साथ मिलके बहुत इंटेलेक्चुअल लोग होंगे, बहुत काम करने का मौका मिलेगा, एंड मुझे ये आता है, वो आता है, या मैं ये सीख जाऊँगा। All that is okay, but you have to understand the work is demanding. You will have to deal with a lot of people who are more knowledgeable than you, who expect a lot from you, and you will have to work really hard to fulfill those demands. मेहनत तो करनी पड़ेगी, काम में जाने के बाद भी सिखाया जाएगा, बट यू विल हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक नई चीज़ें सीखना पड़ेगा, परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा, अपनी एक जगह बनानी पड़ेगी, बिकॉज इट इज़ एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है। ऑल अक्रॉस इंडिया से लोग, कॉस्मो आई एम यूजिंग अ वर्ड, आई होप यू अंडरस्टैंड, लेकिन ऑल अक्रॉस इंडिया से लोग आ रहे हैं विद वैरिड बैकग्राउंड्स। कोई फ्रेशर है, कोई बहुत सालों का एक्सपीरियंस लेके आया है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से आ रहा है, और सब लोग अच्छा कर रहे हैं ऑलरेडी, तभी वहाँ पहुँचे। और जो आपके ऊपर हैं वो तो उस फेज से निकल के वैसे ही ऊपर जा चुके हैं। तो उन सबके एक्सपेक्टेशंस को मीट करना और अपने आप को प्रूव करना, ये चलेगा। तो वर्क एनवायरनमेंट में ऑल्दो यू आर गोइंग टू गेट यू नो सैटरडे संडे ऑफ है, एक डिसेंट वर्क लाइफ बैलेंस है, ऐसा कहा जाता है कि यू डोंट हैव टू डील विद पीपल। तो बहुत बैंक वाला प्रेशर नहीं है, बट उसके अलावा भी काम के प्रेशर होते हैं। बहुत सारे काम आपको सीखने पड़ते हैं, आपको नहीं आते हैं, बहुत मेहनत लगती है, स्पेशली द डिपार्टमेंट दैट यू आर गोइंग टू गेट, उस पर डिपेंड करेगा। तो ऑफ कोर्स एक्सीलेंस तो आपसे एक्सपेक्ट की जाएगी आपके काम में, ठीक है। फिर आती है पोस्टिंग की बात, कि मुझे पोस्टिंग, यूजुअली पीपल हैव दिस नोशन कि शायद मुझे प्रमोशन या पोस्टिंग, आई एम सो सॉरी, या तो मिल जाएगी मुंबई में या फिर मेरी होम पोस्टिंग, विच इज़ अ गुड थिंग। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, होम पोस्टिंग भी मिल जाती है अगर आपका होम उधर 33 लोकेशंस में है जहां आरबीआई के ऑफिसेज हैं, विच आर यूजुअली एक हेड ऑफिस है, और उसके अलावा आपकी जो स्टेट कैपिटल्स होते हैं, चंडीगढ़ है, बेंगलुरु है, दिल्ली है, ऐसे एरियाज़ में मिल सकते हैं। लेकिन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट, ये एक ऑल इंडिया लेवल जॉब है, आपको कहीं पे भी पोस्ट किया जा सकता है, एंड पोस्टिंग यूजुअली कम्स विद अ ट्रांसफ़र, ओके, क्योंकि उस जगह पे आपको यूजुअली पोस्टिंग भी मिली, मतलब प्रमोशन भी आया, आपको ट्रांसफ़र भी मिला, और ऑल इंडिया में कहीं भी आप पोस्टेड हो सकते हो, एंड देन यू हैव टू सर्व देयर फॉर 5-7 ईयर्स, जब तक अगली आपकी पोस्टिंग नहीं आती है, अगली आपको प्रमोशन नहीं मिलती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यूजुअल केसेस में आपको फिर 5-7 साल वहाँ रुकना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए भी क्लैरिटी रखना अपने माइंड में। अब्रॉड पोस्टिंग्स नहीं होती हैं, ऑल्दो आप लोगों को मौका मिलता है टू गो एंड अटेंड वेरियस ट्रेनिंग्स, कॉन्फ्रेंस, बहुत कुछ ऐसा अटेंड करने का। पोस्टिंग नहीं मिलती क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑपरेट्स फ्रॉम इंडिया ओनली। लेकिन प्लीज़ ये भी ध्यान रखिए, कहीं पे भी पोस्टिंग मिल सकती है। बट लकीली अ वेरी गुड थिंग इज दैट आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स गेट ऑफिसर्स क्वार्टर्स, जिसको कहते हैं, अकोमोडेशन मिलती है आपको। अब क्या है ना, ये जैसे मैंने जो पर्सनली कॉलोनी देखी है, बिकॉज आई एम नियर दिल्ली, तो मैंने तो हौज खास में यहाँ पे जो कॉलोनी है आरबीआई ऑफिसर की वो देखी है। तो अच्छी कॉलोनीज हैं, आपको बड़ा मज़ा आता है, बिकॉज सारे आप ही के माइंडसेट वाले लोग हैं आसपास, एंड इट्स लाइक अ फैमिली दैट यू गाइज मेक। ऑफिस में मिलते हैं, फिर यू नो आसपास लोग मिल जाते हैं। तो इन केस अगर ये नहीं मिलती है, विच इज़ मोस्ट लाइकली अ केस इन सिटीज़ लाइक मुंबई, जहाँ पे पहले ही बहुत ज़्यादा लोग पोस्टेड हैं और वहाँ घर नहीं मिलता आपको, तो उसको आपको रेंट मिलेगा उस चीज़ का, 70 से 90 हज़ार रुपये तक का महीने का आपको रेंट मिलता है। आप कहीं और रह लीजिए, और आने जाने का पेट्रोल का खर्चा भी मिलता है। तो एक ये जो कंसर्न आता है कि व्हाट इफ आई डू नॉट गेट अ क्वार्टर और अ हाउस, देन डोंट वरी, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। लेकिन यस, हो सकता है कि आपको ना भी मिले, ये भी क्लैरिटी रखना, ठीक है। और जो ये कॉलोनीज होती हैं, ऑफकोर्स ये वैसी ही कॉलोनीज हैं जहाँ पे सारे आपने देखे होंगे सरकारी PSU यूनिट्स की जैसे कॉलोनीज होती हैं, इनका भी वैसा ही है। तो एक काइंड ऑफ अपनी खुद का एनवायरनमेंट बन जाता है, अपनी ही दुनिया में फिर आप लोग रहते हो, आउटसाइड वर्ल्ड से इतना कनेक्टेड फिर आप नहीं रहते हो। प्रोज भी हैं, कॉन्स भी है, लेकिन मैं कहूँगी कि एज एन एस्पिरेंट ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जस्ट टू मेक यू क्लियर कि आरबीआई आपको बहुत कुछ दे रहा है,
नॉट एग्जैक्टली इन द वे यू इमेजिन्ड, क्योंकि रियलिटी थोड़ी अलग होती है, पर जो वो रियलिटी है इट इज़ रियली रियली बेटर देन मैनी अदर थिंग्स। और जैसे मैंने कहा, ये जो पर्क्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, टॉप नॉच पर्क्स हैं जो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में आपको मिलते हैं। तो यू वुड बी लकी इफ़ यू आर गोइंग टू गेट दोज, लेकिन उसके लिए लकी होने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है, और आई एम होपिंग आप लोग मेहनत पहले ही कर रहे होगे। अगर नहीं कर रहे हो तो कर दो शुरू, दिस इज़ द राइट टाइम, बिकॉज आई एम नॉट श्योर आप वीडियो कब देख रहे हो, लेकिन अगर अब तक मेहनत शुरू नहीं की है, कर देनी चाहिए, ठीक है। पेपर क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में होने वाला है। Now, if you are preparing only for RBI Grade B examination, dedicated target है आपका RBI Grade B, तो हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं आप। Y754 मेरा कूपन कोड है, बहुत बढ़िया आपको डिस्काउंट मिलेगा इस पे। इन केस यू प्लान टू अपीयर फॉर RBI, नाबार्ड, RBI SEBI, RBI और एनी अदर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम लाइक PFRDA, RIDI जो भी आ जाता है, तो गो फॉर बैंक महापैक प्लस। यहाँ पे मल्टीपल एग्जाम्स एक साथ तैयारी करवाएंगे आपको हम लोग, और सेम कोड यूज करना रहेगा, ठीक है। लेटेस्ट बैच हमारा लाइव होने जा रहा है। टू चेकआउट आवर वेबसाइट और डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन, जो मैंने शुरू में कहा था। तो कुछ अभी रह गया हो आपके मन में, जरूर कमेंट करना कि मैम ये वाला पार्ट आपने एड्रेस नहीं किया। आई विल डेफिनेटली आंसर दैट क्वेरी एज वेल, एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू।